ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم 129۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں۔ جدید ٹیکنالوجی مراکز میں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے، نوجوان اس ٹیکنالوجی سینٹر سے مستفید ہو، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو۔ نظام آباد پولیس کمشنر کلمیشور و ان کی اہلیہ کا تبادلہ، انہیں ڈپوٹیشن پر نیشنل پولیس اکیڈمی میں ٹرانسفر کرنے کے احکامات جاری۔ ریاستی گورنر نے ریاست کی 9 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کا کیا حکم جاری، پروفیسر یادگیری راؤ تلنگانہ یونیورسٹی ڈچپلی وائس چانسلر مقرر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ جدید ٹیکنالوجی مراکز میں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا بیان، اور اہل امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سینٹر سے مستفید ہوں۔ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے مشورہ دیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے مراکز میں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کریں گے۔ جمعے کے روز محکمہ کے پرنسپل سیکرٹری سنجے نے متعلقہ اضلاع میں نئے قائم کیے گئے جدید ٹیکنالوجی مراکز میں داخلوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا، جو ریاستی حکومت کے محکمہ روزگار اور تربیت کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تیار کیے گئے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نوجوان کو تجویز کی کہ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ATC مراکز سے مستحق طلبہ استفادہ کریں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہل کی جائے کہ اس ماہ کے آخر سے پہلے مکمل داخلے ہو جائیں۔ ویڈیو کانفرنس کے بعد کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے متعلقہ افسران سے ملاقات کی اور ہدایت دی۔ انہوں نے داخلوں کے عمل کو تیز کرنے اور ATC مراکز کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے وسیع مہم چلانے کا حکم دیا۔ ATC مراکز میں تربیت شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی تجویز کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 روز میں فیلڈ کا دورہ کریں گے اور انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں حکومت نے ضلع میں نظام آباد، بودھن اور کمر پلی میں ATC مراکز کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فی الحال سرکاری ITI کے احاطے میں ATC سینٹرز کی دیکھ بھال کی جا رہی اور متعلقہ کورسز میں ٹریننگ شروع کی جائے گی اور تمام سہولتوں کے ساتھ نئی عمارتیں جلد ہی دستیاب ہوگی۔ ریاستی حکومت کے زرعی مشیر بانسواڑہ MLA پوچرام سرینیواس ریڈی نے استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈروم مکانات تقسیم کیے اور انہوں نے واضح کیا کہ ہر مستحق شخص کو ڈبل بیڈروم مکان ملے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بانسواڑہ MLA پوچرام سرینیواس ریڈی نے بانسواڑہ ٹاؤن مستقر میں MLA کیمپ آفس میں بیرکور منڈل ملاپور گاؤں کے 40 ڈبل بیڈروم مکانات استفادہ کنندگان میں تقسیم کی۔ اس پروگرام میں ایگروس چیئرمین کاسولا بالراجو، سب کلکٹر مسز کرن مائی، بانسواڑہ ٹاؤن اور بیرکور منڈل کے عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद को महकमा इनकम टैक्स 80G की मंजूरी अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए और एक कदम आगे। दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर सदर ट्रस्ट मुफ्ती सईद अकबर साहब का मीडिया से खिताब। महकमा इनकम टैक्स से 80G की मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्ट के अकाउंट सिस्टम को बेहतर बनाने एक कदम आगे बढ़ते हुए निज़ामाबाद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उम्दा पेशरफ्त हासिल की है। इस खुसूस में आज बाद नमाज जुमा दफ्तर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर ज़िला निज़ामाबाद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ट्रस्ट मुफ्ती सईद अकबर साहब ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद ने महकमा इनकम टैक्स से 12A और 80G के लिए मंजूरी हासिल की है और अपने अकाउंटिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया है। 12A रजिस्ट्रेशन खुद तंजीम को अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करने से छूट देता है और 80G रजिस्ट्रेशन अतिया दहिंदगान को टैक्स फ़वाइद फ्राहम करता है। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जारी करदा 80G सर्टिफिकेट चैरिटेबल ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनियों जैसे गैर सरकारी इदारों को दी जाने वाली एक पहचान है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G अहल चैरिटेबल ट्रस्ट या इदारों में ताउन करने वाले अफराद को अपने टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई 80G रजिस्टर्ड इदारे को फंड्स डोनेट करते हैं तो हुकूमत की तरफ से अपने टैक्स पर छूट मिलती है, यानी अपनी जो सालाना टैक्स की रकम हुकूमत को अदा करना होता है इसमें रियायत मिलती है। रसीद में नाम, पता, पैन कार्ड, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अतिया दहिंदा का नाम के साथ साथ अतिये की रकम और अदायगी का तरीक़ा भी दर्ज होना चाहिए। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब सदर ट्रस्ट मौलाना अमादुद्दीन क़ासमी, मौलाना तलहा, हाफिज़ मुजीब, मोहम्मद अज़हरुद्दीन अकाउंटेंट, हाफिज़ जाफ़र, अब्दुल हई राहिल व दीगर भी मौजूद थे। शहर निज़ामाबाद के मुआविनीन और चंदा देने वालों के लिए बड़ी अहम खुशखबरी। महकमा इनकम टैक्स से 12A और 80G के लिए मंजूरी हमने हासिल की है और हमने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत और मुस्तहकम कर लिया है। 12A रजिस्ट्रेशन खुद तंजीम को अपनी आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करने से छूट देता है और 80G रजिस्ट्रेशन अतिया दहिंदगान को टैक्स फ़वाइद फराहम करता है। महकमा इनकम टैक्स की तरफ से जारी करदा 80G सर्टिफिकेट चैरिटेबल ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनियों जैसे गैर सरकारी इदारों को दी जाने वाली एक पहचान है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80G अहले चैरिटेबल ट्रस्ट या इदारों में ताउन करने वाले अफराद को अपने टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप जब भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद को फंड डोनेट करते हैं तो हुकूमत की तरफ से अपने टैक्स पर छूट मिलती है, यानी अपनी जो सालाना टैक्स की रकम हुकूमत को अदा करना होता है उसमें रियायत मिलती है। रसीद में नाम, पता, पैन, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अतिया दहिंदा का नाम के साथ साथ अतिये की रकम और अदायगी का तरीक़ा भी दर्ज होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया शहर निज़ामाबाद के तहत खिदमत अंजाम देने वाले जमी सहाफ़ी अहबाब का मैं और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म जमी अराकीन दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने प्रोग्राम हो रहे हैं आप हज़रात ने अपना गिरा कद्र ताउन पेश किया और अपनी मुखलिसाना
समझो कि अपने मुखलिसाना मशवरों से हमें नवाजा और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जो भी कारकर्दगी उसको आपने जली हरफों में सुर्खियों में उसको जो है पेश किया है, नुमाया करने का आपने एहतमाम किया है। ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म से आप हज़रात की एक दिली वाबस्तगी है। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात की जमी खिदमात को सहाफ़त के ज़रिए से जो मिली कौमी खिदमात आप अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, मज़ीद तरक्कियाँ से नवाजे और अल्लाह ताला दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हर फील्ड में आप हज़रात को तरक्कियात से नवाजे। कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने वाले ज़हनी माजूरीन के ख़ानदान को राहत। अब्दुल गफूर मुकीम का मिसाली समाजी अक़दाम। सदरम सर्टिफिकेट के तहत रिसानी। निज़ामाबाद में मुख्तलिफ माजूरीन की एक बहुत बड़ी तवील फ़हरिस्त है जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों और डिवीज़नों में फैले हुए हैं, लेकिन उनकी दादरसी करना हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे शहर के डिवीज़न नंबर 60 के कॉरपोरेटर मिस्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने एक ज़हनी मासूर ख़ानदान की 31 साला लड़की कलीमुन्निसा बेगम को मुसलसिल 5 साल से जद्दोजहद करते हुए सदरम सर्टिफिकेट के तहत उनको हुकूमत की जानिब से वजीफ़ा मंजूर करवाया। इस खुसूस में आज दस्तावेज़ात कलीमुन्निसा बेगम की रिहाइश गाह पहुँचकर हवाले किए गए। कलीमुन्निसा और उनके अफराद ख़ानदान ने इन खिदमात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस और मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉरपोरेटर से इजहार तशक्कुर किया और दुआएं दी। अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि वो सिलसिलावार जद्दोजहद करते हुए इस ज़हनी मासूर लड़की कलीमुन्निसा बेगम के लिए आधार कार्ड की तैयारी, बैंक अकाउंट की कुशादगी, इनकम सर्टिफिकेट की इजराई और सदरम सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर बल्दिया, DRDA ओहदेदारों से सिलसिलावार नुमाइंदगी को यकीनी बनाया। मिस्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर इंचार्ज कॉरपोरेटर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम अजला में मौजूद ज़हनी माजूरीन के लिए अलहदा तौर पर सदरम सर्टिफिकेट की इजराई के लिए स्लैट बुकिंग के तरीक़ेकार को मुतारिफ करवाएं, ताकि ऐसे लोग जो ज़हनी तौर पर माजूर होते हुए किसी भी तरह से कोई काम अंजाम नहीं दे सकते, उनकी भरपूर मदद की जा सके। असदी साहब का, मुखी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने हमारा वजीफा बनाया बहन का, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 में हमारे शबीर भाई के वालिद साहब, उनकी बहन कलीमुन्निसा बेगम का सदरम सर्टिफिकेट बनाए थे और पेंशन के लिए साबिका गवर्नमेंट जब थी उस वक्त पेंशन के लिए अप्लाई करे थे और पेंशन सैंक्शन होने में ताख़ीर हुई बहुत साबिका गवर्नमेंट में, क्योंकि 2022 में पेंशन सैंक्शन हुआ। उस वक़्त इनका सदरम सर्टिफिकेट जो है सो एक्सपायर होगा, रिन्यूअल कराने की ज़रूरत थी, लेकिन ये लोग को भी तल्ला नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दरख्वास्त दे चुके थे पेंशन के लिए ज़हनी माजूरीन के लिए, और कलीमुन्निसा बेगम ज़हनी माजूरीन है और वो एक्सपायर होने की वजह से सदरम कैंप उनका पेंशन नहीं आया था। फिर ये लोग मेरे से राब्ता करे और बताए कि भैया पेंशन अभी नहीं आया, इनके घर वाले। फिर मैं दोबारा हमारे बल्दिया में जानकारी किया इनका आधार कार्ड लेकर, और मालूम हुआ कि इनका पेंशन तो है, मगर एक बार आप कलेक्टर ऑफिस में जाइए। तो मैं वहाँ पर DRDO ऑफिस में गया कलेक्ट्रेट में, और वहाँ के ऑफिसर से मालूम किया तो वो बताया कि नहीं इनका सदरम रिन्यूअल था, उस वजह से इनका पेंशन अभी नहीं आया, लिहाजा इनका सदरम रिन्यूअल किया जाए तो फिर इनको दोबारा पेंशन आ जाएगा। फिर मैं वो सदरम रिन्यूअल की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़कर वहाँ से DRDO ऑफिस से इनका सदरम हासिल किया, और उसके बाद फिर कमिश्नर ऑफिस में आके कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करके वहाँ पर एक फॉर्म लिया, और कमिश्नर साहब भी एक लेटर दिए। वो लेटर लेकर जाकर मैं जो है सो सदरम और इनकम सर्टिफिकेट के साथ कलेक्ट्रेट में DRDO ऑफिस में सबमिट करा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो सो पेंशन आ चुका है। और मैं इस मौके पर
हमारी अभी जो हुकूमत है उनसे मैं मुतालबा करता हूँ और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे ज़हनी माजूर और हैंडीकैप लोगों के लिए एक अलहदा कैंप फ्राहम करे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई माजूरीन हैं निज़ामाबाद शहर के अंदर और हैंडीकैप भी लोग हैं जो बिल्कुल आज तक सदरम नहीं बनाए हैं, और सदरम का भी कैंप इनका अलहदा रखे तो बेहतर रहेगा। मैं फिर एक बार हुकूमत से और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। हिंदुस्तानी मुसलमानों में खुशी की लहर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आज इंतहाई अहम खबर सामने आई है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत उज़्मा ने मुफ्ती सलमान अजहरी की ज़मानत की दरख्वास्त कबूल करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने गुजरात हुकूमत की जानिब से मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मुखालिफत के बावजूद ज़मानत को मंजूरी दे दी। गुजरात हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले वकील के तमाम दलाइल को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत किया, ताहम फौरी तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करने का हुक्म दिया। इत्तलात के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी पर पासा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, ताहम आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। विकला के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती सलमान अजहरी गुज़िश्ता 10 माह से वडोदरा की जेल में थे। गुजरात हुकूमत ने इनके खिलाफ पासा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। क़ब्ल अज़ी उन्हें एक जलसे में शेर कहने पर गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ताहम गुजरात की मुतादिद अदालतों ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म जारी होने के बाद हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने खुशी व इत्मीनान का इजहार किया। बिला लिहाज मुसल्लिक तमाम मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से गमज़दा थे। एडपल्ली मंडल बीजेपी पार्टी के सीनियर कायदीन के रामचंद्र ने अनाज खरीदारी मराकज़ कायम करने और किसानों की मदद करने का किया मुतालबा। ये सितम ज़रीफ़ी है कि उनकी कटौती शुरू हुई 20 रोज़ गुजर जाने के बावजूद हुकूमत ने अभी तक खरीदारी मराकज़ कायम नहीं किए। के रामचंद्र की क़ियादत में बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडरों ने चावल अनाज की खरीदारी के मराकज़ कायम करने के लिए एडपल्ली मंडल के रेवेन्यू अफसर को एक अर्जी पेश की। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम अराजी है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बड़े ताजिर चावल की कटाई के 10 से 15 दिन बाद भी दाना नहीं खरीदते। रामचंद्र ने याद दिलाया कि कर्ज माफ़ी स्कीम और किसानों की यकीन दहानी, यहाँ तक कि 500 बोनस की नाकामी की वजह से किसानों को तकलीफ हो रही। उन्होंने छोटे और पसमानदा किसानों की मदद के लिए फौरी तौर पर मंडल में अनाज खरीदारी मराकज़ कायम करने को कहा। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला एग्जीक्यूटिव मेंबरान पी श्रीनिवास, बूथ सदर के सुधाकर, अरुण, नवीन दीगर भी मौजूद थे। చాలా ఇబ్బందులు పాల్పడుతున్నారు। ఎకరం అంతకన్నా తక్కువ రైతులకు వడ్లు కోసి కూడా దాదాపుగా 10 నుంచి 15 రోజులు కావస్తున్నది। పెద్ద వ్యాపారస్తులు వారి యొక్క వడ్లు కొనకపోవడంతో వారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు। అసలే రుణమాఫీ మరియు రైతు భరోసా రాక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు ఈ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా లేకపోయేసరికి చాలా తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతున్నారు। అందుకోసమే ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ వరి ధాన్య కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎడపల్లి మండల శాఖ తరఫున ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం చేయడం జరిగింది। తక్షణమే ఈ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి, తద్వారా చిన్న రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాము। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के साथ उनकी अहलिया 7th बटालियन कमांडेंट रोहिणी प्रियादर्शनी का तबादला। उन्हें डिपुटेशन पर नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रांसफ़र करने के अहकामात जारी किए गए। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर का तबादला कर दिया गया। इसके अलावा उनकी बीवी रोहिणी प्रियादर्शनी जो 7th बटालियन कमांडेंट के तौर पर
काम कर रही थी का भी उनके साथ तबादला कर दिया गया। ये दोनों मरकज़ी खिदमात पर जाएंगे। उन्हें डिपुटेशन पर नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रांसफ़र करने के अहकामात जारी किए गए। उनकी अहलिया 7th बटालियन कमांडेंट रोहिणी प्रिया दर्शनी का भी एनपीए में तबादला कर दिया गया। इस दौरान इन दोनों को एनपीए के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वो चार्ज संभालने की तारीख से 5 साल तक डिपुटेशन पर वहाँ रहेंगे। गवर्नर ने रियासत की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री के अहकामात जारी किए ताकि इंचार्ज रियासती हुकूमत के नज़्म नस्ख की हिमायत की जा सके। प्रोफेसर यादगिरी राव को तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। रियासत के गवर्नर ने रियासत की 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की तकर्री का हुक्म जारी किया है। प्रोफेसर यादगिरी राव को तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निजामाबाद जिले का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर JN श्रीनिवास महबूब नगर पालामुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर, प्रोफेसर प्रताप रेड्डी काकतीय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर, प्रोफेसर कुमार मोगलाराम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर, प्रोफेसर उमेश कुमार को सतवाहना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर, तेवहनाव राव को वीत के वाइस चांसलर के तौर पर, यूनिवर्सिटी नलगोंडा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अलदास जनाया बतौर वाइस चांसलर कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर राजी रेड्डी यादगिरी राव ने काकतीय यूनिवर्सिटी के शोबे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर प्रोफेसर के तौर पर काम किया। हनुमाकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले यादगिरी राव UGC कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर सोशल साइंस के डीन काकतीय यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफिस स्टडीज़ के चेयरमैन हैं और उन्हें रियासती हुकूमत ने 2021 में बेहतरीन उस्ताद के तौर पर नवाजा है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जदीद टेक्नोलॉजी मराकज़ में रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। नौजवान इस टेक्नोलॉजी सेंटर से मुस्तफिद हो। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर व उनकी अहलिया का तबादला, उन्हें डिपुटेशन पर नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रांसफर करने के अहकामात जारी। रियासती गवर्नर ने रियासत की 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री का किया हुक्म जारी। प्रोफेसर यादगिरी राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली वाइस चांसलर मुकर्रर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।